लॉर्ड चर्च। आइए हम हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करेंगे और परमेश्वर के करीबी पद में हम आएंगे। We will draw near to God, right? And the word says in Psalm, praise the Lord my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Praise the Lord my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. आइए कलीसिया हम अपने अपने आप को तैयार करेंगे. It's a privilege to bless the Lord, to praise the Lord, right? We believe that when we praise and we worship, the Lord is enthroned on our worship. I would request everyone, let's prepare our hearts, let's spend this time in prayer. आइए हम प्रार्थना में इस समय को बिताएंगे और प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में और करीब हम चलेंगे. आइए उसको धन्यवाद देंगे उसके सारे आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में हमें दिया है, उसकी विश्वास योग्यता के लिए. आइए हम उसको धन्यवाद देंगे. हालेलुया. यस लॉर्ड जीसस. Oh, we thank you, God. आइए हम चुप नहीं रहेंगे. We have so many reasons to thank him. He is a faithful God. He is a Father who loves us, who cares for us. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you for who you are to us. We thank you, oh Lord, for Lord, you choose to bless us, oh God. Father, you don't see us, oh God, in our sins, oh Lord. But Lord, you see us with love, having the desire to pull us out of that sin, oh God. Oh, we thank you, oh God. Thank you for that amazing grace, oh Lord, that you have poured out in our lives so lavishly, oh God. Oh, we worship you, God. Thank you for your faithfulness, oh God. Thank you for sustaining us, oh God. Thank you for being every moment of our lives with us, oh Lord. We thank you so much, oh God. Oh, we bless you, oh God. Lord, we pray, Holy Spirit, you take complete control. You lead us and you guide us. Take us to the foot of Jesus so that we can worship him in truth. Yes, Holy Spirit, we pray that, Lord, you will take complete control over our lives, because where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. Help us to experience that freedom today, O God, that we will worship you in that freedom, O Lord. Yes, Lord. Be blessed, O God. Thank you. We praise you. Hallelujah. आइए इस गीत को हम गाएंगे. Bless the Lord, oh my soul, and let's sing it like we mean it. हर एक शब्द हमारे दिल की गहराई से हो. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Let's sing a song of worship unto Him. Come, let us worship Him. Yes, for He deserves every worship Bless that the name of rises from our heart and comes Blessed out be of the our name of lips. the Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, God, for who you are. Oh, my soul rises and sings praises unto you, God, for you deserve every praise, oh God. Oh, we worship you, Lord, for who you are and for all that you are doing and you have done and you will do in our lives, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Shandarabararar. Oh, rarabashandararare. Oh, rabarararararare. Oh, we worship you. Yes, Lord, we want to worship you. We want to worship you with our lives, oh God. We want to worship you with everything that we do, oh God. Lord, we want to worship you, God, with every word that comes out of our mouth. We want to worship you, Lord, with every thought that comes across our mind, oh God. For we want to live to worship you, God. That's what we want to do all the days of our lives, to worship you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Be exalted, God. Be exalted. जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूँ तेरी आराधना
गाया है, हम उसको अपने जीवन की प्रार्थना बना लें. Let this be a prayer that Lord, may you receive every praise from my life, O God. Yes, Lord. Everything I do, everything I am, Lord, I offer it to you, God, as a praise for you, God Jesus. Because of who you are, O God. There is no one like you, Jesus. No one, O God. For you are so close to us, closer than a mother, O God. Yes, Lord. You have lavished your love upon us, O God, and we thank you. Thank you for this amazing love, O God. Jesus. We worship you, God. There is none like you, Jesus. No one beside you, God. आइए कलीसिया, हम इस गीत को मिलकर गाएंगे. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. होने दे ये हमारे जीवन की गवाही हो कि प्रभु आपके समान कोई भी नहीं. हमने चख कर देखा है प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना था, हमने खुद उसको अनुभव किया है प्रभु, कि आपके समान और कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है प्रभु. Oh, we worship you, God. Thank you, Jesus. तुम सा कोई नहीं, oh Jesus. तुम सा कहीं नहीं. Hallelujah. अब है पूरा यकीन. तुम सा कोई
God. Yes, Jesus. Lord, we thank you for who you are to us. We thank you so much, O God, for your goodness and your faithfulness, O God. Oh, यीशु, तुम सा कोई नहीं। कलीसिया में चाहती हूँ ये समय आप याद करें वो एक कार्य जो प्रभु ने आपके जीवन में कहा है, There is none like you. and thank him saying that yes Lord. You are worthy to be praised. पूरा यकीन है प्रभु कि तुम सा कोई नहीं। We worship your हालेलुया, name. हालेलुया। कलीसिया याद करें उस समय को और उसको धन्यवाद दे। Worship your holy आप चुप नहीं रह सकते उसके उस महान कार्य को जो उसने आपके जीवन में किया है। आप चुप नहीं रह सकते, अपने मुंह को खोलिए। ये मत सोचिए कौन आपके दाहिने है कौन आपके बाएं हैं, सिर्फ परमेश्वर की ओर नजर करिए। वो महान परमेश्वर है, उसके समान कोई भी नहीं है। Oh, we worship you God. Oh, we exalt you Lord Jesus. तेरी आराधना हो, आत्मा से तेरी आराधना हो। ओ यीशु, मेरे जीवन से Thank you, तेरी आराधना हो। thank you, Thank you God. Thank you for your faithfulness, Jesus. Thank you for who you are, O God. Yes, Lord, you are always with us, O God. There are times when we do not see you, God, but you are right there with us, O Lord. We thank you so much for your faithfulness. Hallelujah. Yes, Jesus. Be exalted. Be glorified, O God. Be magnified in this place. Be so big, O God. Yes, Lord. Fill this place, God. Fill this with your splendor, with your glory, O God, so that no heart, no life will be untouched, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Reign, O God, reign in this place. Thank you, Lord. तू राज्य करे प्रभु हमारे बीच में, हमारे अंदर तू राज्य करे। Hallelujah. Thank you, Lord. We surrender, God, once again unto you. Have your own way, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और हम पवित्र आत्मा को कहेंगे कि हमसे बात करें। हाँ, हम अपना आँखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर वर्दी, यू आर होली, लॉर्ड यू आर ग्रेट ओ जीसस। We thank you for this wonderful morning. We thank you for your presence in our midst. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Lord, we know that you are moving in our midst and you are going to do great things in our midst. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर हम अपना हृदय को खो रखा है, आपके वचन से हमें बात करें आज सुबह। हर एक रुकावट, हर एक डिस्ट्रैक्शन को हम यीशु के नाम से इस जगह से दूर करते हैं। पवित्र आत्मा तू हम सब के बीच में पूरा कब्जा करे, हमसे बात करे, हमें उस कान दे ताकि आपकी आवाज़ को हम सुन पाए, वो आंखें दे ताकि हम आपके कार्य जो होते हुए हमारे बीच में उसको हम देख पाए, और वो हृदय दे ताकि हम सुनकर समझते हुए आपके वचन का अनुसार
चलने पाए। आए हुए सभी को हम अपना आप को आपके उपस्थिति में और आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, today I'm going to continue, ठीक है, what I have shared before Father's Day. Father's Day के पहले जो मैंने शेयर किया था, and I was talking about the loss, ठीक है ना, the loss, जो खोए हुए के बारे में, and love for the loss, या तो rescue the loss के बारे में जो कलीसिया का जिम्मेदारी जो है हमने बात किया था। And I talk from the book of Luke chapter 15, ठीक है, लूका 15 में पढ़ेगा तो उसका कहानी बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और उसी से हमने शेयर किया, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। And we talk about the lost, the lost sheep, the lost coin, and we were talking about the lost son, एक पुत्र के बारे में हमने बात किया था। एंड ये जो लूक 15 का जो बात जो ये 3 चीज़ जो खोने वाले को बात जो कर रहे थे वो क्या है, तो परमेश्वर क्या चीज़ को हम लोग को दिखाना चाहता है, तो ये दिखाना चाहता है कि सोल, एवरी सोल इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी सोल इज़ प्रेशियस टू हिम, एंड ही डोंट वांट एनीबॉडी टू पेरिश, and he want all of us to come back to him. परमेश्वर चाहता है कि कोई भी आत्मा ना खोए, सब कोई उसके पास वापस आए, और उसी के लिए जिम्मेदारी क्या है, कलीसिया को सौंपा गया है कि आप भी जाकर खोए हुए को ढूंढो। परमेश्वर आए खोए हुए को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए, और उसी मिशन और उसी कार्य को कलीसिया के लिए भी सौंप दिया गया है कि यू मस्ट गो आफ्टर द लॉस, ठीक है, उसी को हम लोग बात कर रहे थे। एंड ये दूर जगह के बारे में जब हम बात किया था, टॉक्स अबाउट द प्राइस एंड द रियलिटी ऑफ सिन, सिन दैट हैज सेपरेट अस, नो, परमेश्वर से हमें जो दूर करता है उसके बारे में हमने बात किए थे। आई टॉक अबाउट दिस फ्रेज, somebody says sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. हम बात किया था कि ये बेटा रियलाइज नहीं किया कि अभी पल के लिए सोचकर और दुनिया का उस चमके हुए जो दुनिया को देखते हुए जाकर एंजॉय करने के लिए अपना संपत्ति को लेकर गया, लेकिन ही डिडंट रियलाइज दैट वाज ओनली फॉर अ मोमेंट, नो, फॉर अ सीजन। हम लोग ने देखा ना, पाप का जीवन जो है ये दुनिया में हम देख रहा है तो वो पल के लिए है, ठीक है, एंड वो पाप का दाम जो है बहुत महंगा पड़ेगा, वो रियलाइज नहीं किया, ठीक है। जैसे बाइबल कहता है कि रोमियो 6:23 में द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है ना, जो पाप का मजदूरी जो है वो क्या है, मृत्यु है, कहता है। और वो मृत्यु जो है, आप अपना संपत्ति जितना भी पैसा है उसी से आप चुकाने के लिए कोशिश करो, आप अपना आप को भी सेल करके, अपना किडनी सेल करके फिर से खरीदने के लिए कोशिश करें, वो भी खरीद नहीं पाएगा। पाप का जो वेज जो है वो क्या है, मृत्यु है। वो मृत्यु सिर्फ ये शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन आत्मिक मृत्यु, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाने का जो मृत्यु को कह रहा है। सो सिन इज गोइंग टू कॉस्ट अस अ लॉट। हम कुछ वर्स पिक करके हम लोग ने पढ़ा था। सो वर्स 20 में हम लोग पढ़ेंगे फिर से, आज लूका 15:20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यस, सो जब वो उसी दूर जगह में, उसी दूर देश में जाकर जब सुअर को जो खाना खिला रहा था, जब सोच रहे थे वापस जाने के लिए निर्णय लेते हुए, जब अपना कहानी, अपना बात, अपना स्पीच को जो तैयारी कर रहे थे, तो यही था कि
उसका पिता के पास वापस जाएंगे और हम कहेंगे कि आपका बेटा कहलाने के लिए भी लायक नहीं, इसीलिए आपका दास बना दो. एंड when he went there, हम देखते हैं कि उसका पिताजी उसको इंतज़ार किया हुआ पिताजी को पाता है. एंड he was praying and he was waiting every day and he was willing to accept him back. ठीक है. एंड हमने ये बात देखा था कि he ran to him to welcome his son back. ठीक है ना. एंड हमने ये बात भी कहा क्यों दोहरा है, लास्ट संडे पे बात किया था. दोहरा है तो परमेश्वर द ड्यूटरोनोमी में हमने देखा कि ऐसा बेटा जब भाग के चला जाता है, ऐसे रिबेल्स करके चला जाता है, तो उसको पथराव करने के लिए बोला जाता है. सो उसका पिता जो है विलिंग था कि मेरा बेटा जो वापस आया है उसको कोई भी हाथ लगाने से पहले मैं जाकर उसको गले लगा लेंगे, और अगर कोई पत्थर मारेगा भी तो मेरे ऊपर लगने दो. एंड वी टॉक अबाउट जीसस बीइंग प्रोपिटिएशन फॉर अस, जीसस बीइंग सैक्रिफाइस फॉर आवर सिंस. ठीक है. एंड टुडे we are going to continue from there. ठीक है. एंड he not only ran but he kissed him. वो चुम्मा देते हुए उसको फिर से वापस स्वीकार लेते हैं. 1 जॉन 1:9 में अगर पढ़ेगा तो हम जानते हैं कि God is faithful. God is faithful to forgive all our unrighteousness if we confess our sin. ठीक है ना. अगर हम अपना गलती को मान के, अपना गलती को परमेश्वर के सामने में आकर मान के हम लोग अंगीकार करते हुए क्षमा मांगेगा, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारा सारे पापों को क्षमा करने के लिए. ठीक है. एंड इवन दो द लॉ डिमांड डेथ. ठीक है. व्यवस्था के अनुसार जो पाप का जो मजदूरी जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है, मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पे जो गले लगाकर जो चूम रहा है वो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. इंस्टेड ऑफ funeral, there was celebration in that house that day when he came back. Luke 15:22. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ. सिर्फ गले लगाया नहीं, सिर्फ दौड़ के जाके गले लगाकर चुम्मा न दिए, लेकिन अपना दास को ये आज्ञा देता है कि जल्दी करो, अपना बेटा जो वापस आए उसी को क्या है, अच्छा से अच्छा बेस्ट रोब से अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसके बाद अंगूठी पहनाओ, उसके बाद जूता पहना दो करके बोला था. आप इमेजिन कर सकता है ये लड़का उसका कंडीशन से ऐसे हुआ होगा कि उसका कपड़ा जो है वो यहाँ वहाँ गंदा और फाटा हुआ होगा, और या तो चप्पल भी नहीं पहना होगा, उसका स्किन भी क्रैक हो गया होगा, या तो काला काला निकाल गया हो गया, या तो उसका कंडीशन जो स्वर को जो खिलाने का काम का कंडीशन, जो खाने नहीं है पीने नहीं, वो पूरा स्केलेटन के कंडीशन में वापस आया होगा. लेकिन यहाँ में उसका पिता बोल रहा है कि पहनाओ, ठीक है, कपड़ा अच्छा से सबसे अच्छा कपड़ा पहनाओ, उसके बाद उसके लिए अंगूठी भी पहना दो, उसके बाद जूता भी पहना दो. ठीक है. ये उसका पिता ने उसको ऑर्डर दिया था. और यहाँ पे जो कपड़ा जो है क्या दर्शाता है, ये कपड़ा हर एक गंदगी, हर एक जो चित्र, ठीक है, जो उसके जीवन में जो है उसी को कवर करेगा. इट टॉक्स अबाउट गॉड्स प्योरिटी, गॉड्स होलीनेस, गॉड्स राइचियसनेस. ठीक है ना. परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का वो जो होली को क्या बोलते हैं, पवित्रता को दर्शाता है. ये जो कपड़ा जो है, द बेस्ट रोब दैट we are discussing, talking about is God's holiness, purity and his righteousness, and he wants his servant to put this robe to his son.
आइज़ाया की किताब 61 वर्स 10 में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ में द बाइबल टॉक्स अबाउट द रोब्स एज वेल। लेट्स गो टू आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और अधर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। सो ये कपड़ा जो है, हर एक गंदगी, उसके जीवन में जितना भी पाप जो है उसको मिटाने का जो कपड़ा है। टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, God extends His forgiveness when a sinners come back and repent with repentant heart and confess his sin. You know, your sin, maybe आपका पाप जितना भी बड़ा हो, ठीक है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका पाप को फिर से मिटा सकता है। आपका पाप खून जैसे लाल कैसे भी क्यों ना हो, क्या है वो, इट विल बी वाइट लाइक अ स्नो। हिंदी में कैसे बोला है, हेम के जैसे समान सफ़ेद फिर से कर देगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो कहाँ से है, तो यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा। और यहाँ पे जो वास्त्र जो कह रहा है वो परमेश्वर का वास्त्र है। जब हम परमेश्वर के पास वापस आ जाता है तो परमेश्वर वो वस्त्र हमें पहनाता है। सो परमेश्वर आपका पाप को मिटाकर आपको क्षमा कर देगा, आपको पहना देगा। द रोब ऑफ राइचियसनेस इज नॉट ऑफ योर गुडनेस। ये रोब जो है आपका अच्छा काम के द्वारा आपने अच्छा किया उसके द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का है ये, ठीक है। हम कमा नहीं सकता, हम खरीद नहीं सकता, ये परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दिया गया कपड़ा है। लेट्स रीड द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। So this righteousness is of Jesus Christ imputed to all those, ठीक है, who comes back to God. You may be a sinner, but when you come back and when you repent before Him, He is going to give you this robe of righteousness. उसका पवित्रता जो है कहाँ से मिला है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको धो दिया गया है। हर एक पाप, आपका हर एक गलतियों को इस रोब से आपको कवर किया जाता है। तब अभी शैतान भी आपको एक्यूज नहीं कर सके, तब अभी शैतान भी आपको रिमाइंड नहीं कर सकता है कि ये आप पापी है, आप गलती किया है, न आप खराब इंसान है। हो सकता है मैं था, लेकिन अभी क्योंकि परमेश्वर में मैं नया व्यक्ति बन गया है, तो मेरे ऊपर मेरा भलाई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता जो है मेरा सिर से लेकर पाँव तक वो पहना दिया है, ठीक है। आई एम कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ राइचियसनेस which is the robe of righteousness. And now even Satan, when he sees me, he is going to see me as son of God. Hallelujah. हो सकता है ये बेटा, तब तक वो स्वर खिला रहा था, तब लोग कोई देखकर ऐसे सोचता होगा ये कौन है, इतना गंदा है, किसका बेटा है, किस खानदान का है, ठीक है, सोच रहा होगा। लेकिन क्योंकि he came back, with change of heart, he was accepted and he was restored with all that he lost, ठीक है ना। जब वो पहना देते हैं तो अभी he is the son of king, he is the son of that father। लोग अभी रिकॉग्नाइज भी से कर पा रहा है, yes he is the son, he is the son, ठीक है। सो robe of righteousness, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इंग्लिश में कहता है गॉड मेड हिम हु हैड नो सिन टू बी सिन। गॉड मेड हिम मतलब गॉड मेड जीसस, यहाँ में यीशु मसीह के लिए बोल रहा है God made Jesus who had no sin to be sin for us, so that in him, in Jesus, we might become the righteousness of God. How do you become righteousness of God? It is through Jesus Christ. Jesus Christ who is sinless, वो निष्कलन निष्पाप को पाप कैसे ठहराया है, ठीक है। यीशु मसीह जो क्रूस में मरा है उसका पाप के द्वारा नहीं, आप और हमारा पाप के द्वारा है। वो पवित्र है, वो मेमना पवित्र कह जाता है, परफेक्ट लैम ऑफ गॉड बोलता है। उसका जीवन में एक भी दोष है ही नहीं, गलती। ही इज राइचियस एंड होली प्योर, ठीक है ना। बट he became sin for us. Bible clearly mentioned here, made him who had no sin to be sin for us, ठीक है, so that you and me can become righteousness of God. आज आप यहाँ बैठे हैं और आप ये सोच रहा है कि मैं गंदी हूँ, ठीक है ना। आप बहुत सारे गिल के साथ बैठा है कि मैंने ऐसे किया वैसा किया, मैं तो खराब था, मैं गंदी हूँ, पता नहीं परमेश्वर मुझको स्वीकारेगा कि नहीं। परमेश्वर मेरे बारे में जब सोचता है तो क्या सोच रहा होगा, लगता नहीं मेरे को स्वीकार नहीं करेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू कि यू कैन बिकम राइचियसनेस ऑफ गॉड, नॉट ऑफ योर गुड वर्क्स बट बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज गॉड हैज पुट हिज wrath on Jesus Christ, upon Jesus Christ. Now you can become righteous to him again. Hallelujah. उसी समय में कोई भी परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए योग्य नहीं थे। इब्रानी की किताब कहता है, ठीक है, so the curtain was torn so that you and me has the right to enter the presence of God. Hallelujah. आज आपको हमको कैसे परमेश्वर अपना संतान फिर से बनाया है, क्योंकि यीशु क्रूस में मारा है, यीशु को पाप ठहराया गया है। इसलिए आपका हर एक पाप को यीशु में गिन गिन कर क्रूस में चढ़ा दिया है। Hallelujah. That's why today you and me are righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. So the day, whenever Satan comes and try to accuse you and bring some doubt, in your mind, you just respond to him. Hey, you, I am the righteousness of God in Christ Jesus, my Lord and my Savior. Hallelujah. The moment he hears that, he will flee from you. जब ये बात जब आप बोलता है ना, रेस्पॉन्ड करते हैं ना, आपको छोड़ के भाग जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That is the power of the blood of Jesus. Amen. Amen. So this boy was restored and put this robe of righteousness back, by his father. The second thing is he was put the ring, ठीक है ना, अंगूठी उसको पहना देता है, ठीक है ना। Ring talks about, there are people, many people talks different things, but ring talks about the privilege that he got back and the authority that he got back from his father. Hallelujah. So रोमियो के समय में, उस समय में जो रिंग जो है, आजकल हम लोग स्टैम्प, ठीक है, रबर स्टैम्प यूज़ करते हैं या तो इंक स्टैम्प यूज़ करके स्टैम्प करके हम लोग साइन करता है। बट उन दिनों में क्या करते हैं कि रोमन गवर्नमेंट में जो भी रोमन गवर्नर है, जो भी एम्पायर जो है, वो लोग कैसे अपना साइन करते हैं, दे हैव अ साइनेड रिंग, ठीक है, वो लोग अपना रिंग से लगा देते हैं, ठीक है। जैसे जोसेफ को फेरो ने दिया था ना, ऐसा वाला रिंग वो लोग पहना देते हैं। सो अभी जब वापस आए तो सिर्फ कपड़ा नहीं पहनाया है, लेकिन उसका रिंग को फिर से पहनाने के लिए, पहचान जो है यहाँ में कंप्लीट होने के लिए अपना पिता यहाँ में कह रहा है पुट रिंग ऑल्सो, ठीक है। वो रिंग जो है टॉक्स अबाउट द privilege that he received back, and it is also a symbol of sonship and authority.
प्रभु परमेश्वर से जो अधिकार हमें जो वापस मिलता है और हर एक सौभाग्य हमारा पोजीशन का जो प्रिविलेज से वो वापस वो मिलने को ये दर्शाता है. ओके, सो व्हेन अ सिनर्स कम बैक टू हिम and God restore his relationship, our relationship with him, with us, he gave his authority back to us. We lost our, हम जेनेसिस में वापस जाकर जब पढ़ेगा तो कैसे हम अपना अधिकार खोया है शैतान के साथ. जब आदम हवा हमारा माता पिता, ठीक है, उसने जब शैतान के बात सुन लिया, परमेश्वर के बात सुनने से ज़्यादा वो शैतान के बात को विश्वास कर लिया, और जब शैतान के बात जब सुना तो रिश्ता तोड़ा, तो हर एक अधिकार परमेश्वर ने दोनों को दिया, वो सब शैतान के हाथ में सौंप दिए हैं. वो अधिकार जो है जब हम वापस लौटते हैं तो परमेश्वर वापस हमें देता है. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी. इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. सो उसका तो अथॉरिटी जो है यहाँ पे बेटा को फिर से बेटा स्वीकारना, बेटा के लिए स्वीकारना, या तो जो अपना पिता को छोड़ के जो भाग गया वो वापस आते समय स्वीकार के उसका हर एक चीज़ों को जो रेस्टोर करने का जो पिक्चर जो है, व्हेन वी कम बैक टू गॉड ही रेस्टोर अस with his authority. He will restore us to be called his sons and daughter. You and me are now the son and daughter of the Most High God. Nobody can touch you. Nobody can overpower you, because you are the son and daughter of the Most High God. Do you consider yourself as son and daughter of the Most High God? ये प्रिविलेज को आप जानने के लिए कोशिश कीजिए. लास्ट संडे वी टॉक अबाउट नो हिम एज अ फादर. आप अपना पिता ऐसे पोजीशन में है तो क्या आपको कैसे फील होगा? आपका अंदर में एक गर्व होगा ना कि मेरा पिता है. सो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि करने वाला परमेश्वर जो है आपको अपना बेटा अपना बेटी फिर से बना देता है. व्हेन वी कम्स बैक टू हिम, हम पाप में ठीक है दूर हो गया, लेकिन जब हम वापस आ जाता है तो हमें वो बेटा बेटी फिर से बना देते हैं. एंड एक्ट्स चैप्टर 1 verse 8 पढ़ेगा तो वहाँ में अच्छा से लिखा गया है कैसे वो हमें फुलफिल करता है. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. सो पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये साफ साफ बोल के गया है कि मेरे लिए जाना आपके लिए अच्छा है, ताकि हम जब जाएगा तो आपका सहायक, आपका मददगार, आपका सामर्थ जो है वो आएगा, वो है पवित्र आत्मा. तो यहाँ बता रहा है कि वो सामर्थ जो है वो जब आपको पाएगा, आप पाओगे, तब क्या है आप मेरे लिए गवाह ठहरेगा. सो हम खोए हुए लोग जब वापस आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें वो धार्मिकता का जो वस्त्र हम पहना के हमें वो अधिकार देते हैं, ताकि उस वस्त्र और अधिकार के साथ हम लोग क्या कर सकता है, जाकर उसका गवाह बन के जो खोए लोग को फिर से हम लोग बचा सके. सेफ टू सर्व, हम बोलता है ना, यू एंड मी आर सेफ so that you and me can serve. ठीक है, serve. You may say, I want to serve God, but how? This is the primary missions of God. I came to seek and save the lost. You were in the lost condition, so I saved you. Now you do
go and save who are lost. Hallelujah. हालेलुया. सो वो अधिकार जो है आपको मदद करेगा, आपका सामर्थ बनेगा और जाके आप बाकी लोगों को भी बचा सकता है. यू आर अ पार्ट ऑफ रेस्क्यूइंग टीम. हालेलुया. हो सकता है आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं हो सकते हैं आपके पास वो राशन नहीं हो, लेकिन आपके पास अधिकार है और आपके पास परमेश्वर का सुसंदेश है और आपको जाकर क्या करना है, उसी वचन से आपको बचाए वो वचन लोग जो खोए उसको बताना है. हालेलुया. हालेलुया. और उसके बाद ये भी कहता है पुट शू ऑन हिज फीट. उसको जूता भी पहनाने के लिए बताता है. एंड ही सेड दिस इज माय सन. ठीक है, उसने बोला दिस इज माय सन, ये मेरा बेटा है. हालेलुया. सो जूता अगर आप इफिसियों की किताब में आम अफगान में जब पढ़ेगा तो वहाँ में द शू ऑफ पीस भी मेंशन है. ये जूता जो है इट टॉक्स अबाउट यस हमारा पाँव में जो पहनेगा जो है वो आप अभी पहना तो दिया बस वस्त्र, उसका धार्मिकता से आप कवर हो गया है, उसका आपके पास अधिकार हो गया है. अभी निकलने के लिए आपको जूता पहना है ताकि आप निकल सके. हालेलुया. आप यू विल नॉट गो barefoot, but he has given you the shoe of peace where you will go and you will bring the good news to the lost soul. उसको ये वस्त्र और अंगूठी और जूता पहना देता है और उसको फिर से स्वीकार लेता है उसका पिताजी और उसको कहता है कि ये मेरा बेटा है, हम लोग आनंद मनाएंगे. लेकिन वर्स 28 से जब पढ़ेगा तो इसी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट या तो थोड़ा कुछ बात है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है ना, जब हम पढ़ने से उस बात को हम लोग थोड़ा देखेंगे. कैन वी रीड 28 to 32? यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा. उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता. परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया. उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है. सो इस बात को फिर से आपको याद रखना है कि यीशु मसीह ने क्यों ये कहानी बताया है. बिकॉज देयर वाज Pharisees and the teachers of the laws who are murmuring and complaining about what he was doing. ठीक है, यीशु मसीह का सेवकाई को लेकर वो लोग को प्रॉब्लम्स हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहानी बताया. सो जस्ट लाइक द स्क्राइब्स एंड द Pharisee हियर, द एल्डर सन या तो द एल्डर ब्रदर जो है was so proud about himself. ठीक है ना, ये मेरा डॉक्ट्रिन है, मेरा शिक्षा है, ये ये मैं ही हूँ, ये मेरा है, उस घमंड से. ठीक है, यहाँ पे जो अंतर के वह हम देखते हैं उसका बड़ा भाई के बारे में जब बताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह. ठीक है ना, यंगर ब्रदर दो ही वॉज फार, दो ही रिबेल्स, दो ही रैन अवे, ही रियलाइज एंड ही केम बैक. ठीक है ना, वो वापस आए, वो पश्चाताप किया है. लेकिन ये बड़ा भाई के बारे में जब आते हैं तो वो घर में थे और रोज़ अपना पिता के साथ टेबल में बैठकर खाते थे, पीते थे और हर एक उसका संपत्ति जो, क्योंकि अभी बात चुका है ना, जो है रिमेनिंग संपत्ति है उसका है, उसको मालूम है. लेकिन यहाँ पे उसका बेटा, उसका छोटा भाई जब आते हैं तो दूसरा एटीट्यूड दिखाता है, हम देख रहे हैं ना.
Yeah, the grace of God is enough, the power of God is enough to, the mercy of God is enough to save the sinners. But sometimes human beings, मनुष्य ऐसा हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर का हृदय को देखना भूल जाता है, परमेश्वर का नज़र से देखना भूल जाता है, परमेश्वर क्या सोच रहा होगा। हम लोग पहनते ना WWJD, What would Jesus do? पहनता तो है, पढ़ता तो है, लेकिन हम करने का समय जब आता है तो हम लोग भूल जाता है। So we see fathers, पिता जो है, every day the father would have his table, dinner table ready, and maybe he was hoping his son would return. उसका चेयर रखा होगा, ठीक है, और उसका प्लेट रखा होगा, hoping that his son will return. And this elder son sat with his father, noticing that his younger brother's seat is empty, his plate is empty, but he didn't do nothing, he didn't do anything at all. He has no concern for his own brother at all. Yes, उसका पिता के बारे में हमने देखा है कि he ran, he kissed, ठीक है, और he was waiting every day बोलता है, लेकिन उसका जो बड़ा भाई जो है कुछ सोचता नहीं है. He wasn't disturbed over the empty seat or empty plate that he saw, he noticed every day, not in the table, and he didn't hear anything about his lost brother. So he never talked to his father. No, कभी कभी हम लोग पिता के साथ बैठता है तो कभी डिस्कस करता है ना कि पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं. थोड़ा कुछ एक फैमिली के साथ डिस्कस करने का समय आता है ना, तो बाइबल डजंट मेंशन एट ऑल. Otherwise, this story would have been read, oh, I could not sleep last night because I have been thinking about my lost son, lost brother बोलना था, लेकिन कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है. But, when this lost younger brother came back, instead of being happy like his father, and instead of instead of being a part of this celebration, he was reluctant to go inside his house. कौन है ये? उसका बड़ा भाई, सगे भाई बोलेगा ना, सगे भाई, वो अंदर नहीं जाना चाह रहा थे. He had a lost brother, and not even one time he didn't even talk about with his father. Until and unless we talk to our father about the lost one will not come back. Do we talk to our father in our prayer for our lost brothers and sisters? हमारे जो प्रिय जो खोए हुए लोग के बारे में क्या हम अपना पिता के साथ डिस्कस करता है कि नहीं? Do we talk to him about the lost soul? Because उसका हृदय ये है कि he don't want anybody to perish. So अगर हम उसका हृदय को जानते हैं तो I think as son and daughter we must discuss about our lost brothers and sisters with our father. Father, I have that compassion for these people like you do. Please help me to go and tell them. थोड़ा डिस्कस कर सकता है, because it is not about you, but it is about God, and it is about God using you among the lost people. Hallelujah. So if you are thinking that yes, I am saved, ठीक है, अब it is not enough, खुद बचना काफ़ी नहीं है बोलता है ना, औरों को भी बचाना है. हम लोग गाना गाता है ना, so वैसे attitude होना है. We should not have the same attitude with this elder brother. He said, उसको पिता को बोलता है कि इतना साल से आपको हमने स्लेव किया है. हिंदी में क्या बोल रहा था? सेवा किया है, कि आपने मेरे लिए वो एक बकरी भी नहीं किया. नहीं, ये झूठ है.
रोज वहाँ में रहता है और इस बेटा के लिए आधा संपत्ति जो दे दिया, उसका पिता कभी नहीं देगा एक बकरी. He must have good time every day at his house with good food, good meal. But he saying कुछ भी नहीं किया बोल रहा है. Can you relate this with yourself? हम ये पढ़ रहा था तो हम अपने बारे में सोच रहे थे. हम भी कंप्लेन कर देते हैं परमेश्वर को. हम भी कंप्लेन करते हैं. कितना साल से हम सेव जा रहे हैं, कितना साल से हम सेवकाई में कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है. ठीक है ना, कभी कभी निकल जाता है. We must examine ourselves. भले ये lost son, जो younger son जो भले दूर थे, भले rebel करके गया है, he knew the heart of his father and he came back and he was restored. लेकिन ये elder son जो है, he was with his father all the time, but he could not understand his father's heart. उसका पिता ने बोला अंदर आ जाओ, आपका जो आपका भाई ना वो तो मर गए थे लेकिन वापस आया है. लेकिन he refused to go inside and celebrate. He refused to go inside and celebrate. So we must never miss the church. आप बहुत दिन पहले जो आप इनवाइट किया है, कब आएगा पता नहीं. You should be there to celebrate. Of course हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो जब नहीं आता है तो हम लोग उदास हो जाता है. लेकिन it doesn't matter. Your work is to just keep telling them. So after inviting them, you also have to be present to celebrate. Who knows when they will come? Okay. So when they come, you must be there to celebrate with him as the elder brothers. We as the believers, as the elder brothers, we should be always, welcoming, have that welcoming heart for the lost one. We shouldn't judge anybody, but we should be open and we should extend the grace of God to those who are lost. When they come, we should be the one who welcome them. We should not be a hindrance, We should not be that stumbling block for the grace of God to, extend to the lost person. बाइबल कहता है, ये पढ़ के हम ख़त्म करेंगे, मार्क 9:42 में, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. ठीक है, ऐसे जो stumbling block या तो ऐसे जो hindrance बनने वाला लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि बेहतर है कि उसको पत्थर बांध के जो समुद्र में फेंक देना बेहतर है बोलता है. So we should never be a stumbling block या तो hindrance for people to come into Christ. Rather, we should be a stepping stone for them to come into the kingdom of God. So that's why we are in the team to rescue who are lost. Hallelujah, hallelujah. So जो उड़ाऊ पुत्र या तो जो खोए हुए जो शिव और जो सिक्के के बारे में जो हम बात कर रहा है, that God takes very serious about the lost soul and it is precious to him, and he wants us also that we take very serious about the lost soul, and as a church we take part and we take responsibility to rescue the lost soul. गुवाहाटी में कितना खोए हुए लोग हैं. Forget about the Gentiles. Even within our families, even within our communities, there are people still need to get saved. They are lost. They are lost. So you and me, if we say that I am found, okay, I'm found, we must go after the lost. The lost son was found,
the lost coin was found and the lost sheep was found and they celebrate. But the elder brother, okay, was there always with his father, was refused to come inside and be a part of celebration. So who is lost here? It is the elder son. So he is rather with his father, but he is lost. So we should even reach out to those lost. तो elder brother को भी हम लोग को reach out करना जरूरत है. No? So may God help us. May God help us, and may God give us burden, as I have already challenged in the first two masses. Let God give us the burden for the lost one, so that with our compassion and love and His mercy and grace, putting the robe of the righteousness and the authority of God, and with the gospel of peace, we will go out and we will rescue the lost. आइए हम आंखें बंद करेंगे. Let's close our eyes and let's look to God and let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम खोए हुए थे, हम आपसे दूर थे प्रभु. हम पाप में अपना मर्जी से जी रहे थे, पाप का एक गुलाम बांध के जी रहे थे. तब तूने अपना अनुग्रह दिखाते हुए हमें फिर से माफ़ किया, हमारा पापों को क्षमा करके हर एक गलती, हर एक गंदगी को आपने साफ करते हुए आपका पवित्रता, आपका धार्मिक वस्त्र हमें पहनाया, और आपका अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो अधिकार जो हमने शैतान को खोया है, वो अधिकार आप हमें वापस दिया. और वो जूते हमें जो पहनाया कि आपके लिए गवाह बन के वो सुसंदेश लेकर खोए हुए लोगों को बीच में चलने के लिए हमें वो पहना दिया. इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं. हर एक जो हमने जो खोया है, आपने हम सब के फिर से रिस्टोर किया, हम सब को अपना बेटा बेटी फिर से बुलाया, और हम सब को प्रभु अपना प्रभु अनुग्रह से प्रभु फिर से बचाया. हमारा अच्छा और हमारा जो भलाई काम के द्वारा नहीं, लेकिन आपने हमें प्रभु अनुग्रह करके अपना प्रेम के द्वारा यीशु मसीह में जो हमारे लिए मारा है, उससे द्वारा आपका धार्मिकता ठहराया. प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु आप हम उसी से ख़त्म नहीं होना है प्रभु, उसी से काफ़ी नहीं है प्रभु. आपने हमें जो सौंप दिया गया जो सेवकाई को, ये आपका जो मिशन है, जो आप खोए हुए को ढूंढने के लिए जो आए, उसी का प्रभु कार्य को लेकर हम भी प्रभु खोए हुए लोगों के बीच में बता पाने के लिए हमें वो प्रभु बोझ से भर दे. फिर से एक बार हमारे हृदय में वो बोझ से भर दे, ताकि जहाँ जहाँ में आपने हमें ठहराया वहाँ में जाकर उस बोझ के साथ लोगों को बता पाए कि परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिंदा है. थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. इस कलीसिया को, विक्ट्री फैमिली सेंटर को गुवाहाटी का एक लाइट हाउस बना दे प्रभु जी, कि बहुत से लोग अंधकार में हैं, वो लोग यहाँ पे आकर शरण ले पाए और आपका प्रभु समा को प्रभु स्वीकार पाए, और बहुत से लोग आपका नए जीवन को प्रभु मिल पाए. यहाँ में बैठे हुए सभी लोग इस कलीसिया का हर एक सदस्य को आशीष करें, ताकि हम जैसे आपने अब्राहम को बोला है, आपको मैं आशीष दूंगा, आपको वो दिखाएगा, उसके बाद आप मेरे लिए आशीष बनूंगा. प्रभु हम सब आपका आशीष को हमारे जीवन के द्वारा बाकी लोगों के लिए आशीष बन पाए. हमें वो ज्योति बना दे, ताकि हमारे ज्योति के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए. हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन. हालेलुया. पिता परमेश्वर,
तूने हम लोग को अच्छा मौका दिया है। कहाँ कहाँ से इकट्ठा होके जमा हो सकता है, इसलिए तेरा नाम धन्यवाद देता है। और प्रभु तेरे महिमा देने के लिए रुपया पैसा भी हम लोग जितना हम लोग सकता है देने चाहता है, और सब जो दिया है तूने सफाई करके आशीष करे, ताकि आने वाला दिन में भी हम लोग तेरे वास्ते और ज़्यादा दे सकने के लिए जो देने वाला लोग को तूने आशीष करिए। तेरे नाम बड़ो होने के लिए अच्छा से चलाने वाला लोग भी चला सकने के लिए तूने आशीष करे। जो भूल कर आए माँ पूरे सूत्रों से प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु का नाम से मांगता है, आमीन।